14. Which schedule of Section 4 of the Sales Tax 1990 includes a list of items on which 0% tax is levied? A. Third schedule, fourth schedule, fifth schedule या sixth schedule? और इसका करेक्ट आंसर आपने आई गेस कर लिया होगा। सेक्शन 4 हमें बताता है फिफ्थ शेड्यूल के बारे में। फिफ्थ शेड्यूल का जो टोटल नंबर ऑफ लिस्ट है उसकी गुड्स की, वो काफ़ी ब्रॉडन है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने उसका एक सैम्पल आपके सामने रख दिया है। फिफ्थ शेड्यूल में हमारे पास सप्लाई टू डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशन, privileged person, privileged organizations which are covered under various acts, orders, rules or regulations and agreements passed by the parliament or issued or agreed by the government of Pakistan. Supplies to duty-free shop provided that in case of clearance from duty-free shops against various baggages, rules issued under Customs Act, the supplies from the duty-free shop shall be treated as import for the purpose of levy of sales tax. Therefore, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हमारे पास वो सारी प्रोडक्ट्स आती हैं, वो सारे आइटम्स आते हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। किस रेट से? 0% से। 15. Under which section of Sales Tax Act 1990 the federal government is empowered to prescribe any specified taxable good which can be imported without payment of whole or part of sales tax? Section 30, B Section 40, C Section 50 या D Section 60? और इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 60। सेक्शन 60 को हम सेल्स टैक्स एक्ट से देख लेते हैं। सेक्शन 60 हमें कहता है पावर्स टू डिलीवर सर्टेन गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स subject to such conditions, limitations or restrictions as it thinks fit to impose. Federal government may authorize the import of goods or class of goods without payment of the whole or any part of the tax payable thereon to the following persons, namely registered importers importing such goods temporarily with a view to subsequent exportation. B. Registered manufacturer cum exporter who import raw material and intermediary products for the further manufacture of goods meant for export. तो यहाँ पे गुड्स डिफाइंड हैं जिनके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो उनकी इंपोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स को एग्जेम्प्ट कर सकता है। 16. Retailer means a person supplying goods to dash for the purpose of consumption. A. Departmental stores, B. General public, C. Wholesaler, D. Shops. इस MCQ का आंसर गैस करना इंतहाई आसान है, इसलिए आई वॉन्ट गिव यू मच टाइम। इसका करेक्ट आंसर है जनरल पब्लिक। 17. Which from the following taxes is not included in the retail price? A. Sales tax, B. Excise duty, C. Utilities, D. Capital value tax. और इसका करेक्ट आंसर है A. Sales tax. 18. Registered person means a person who is 1. Registered, 2. Liable to be registered, 3. Tax avoider और tax escaper. इसमें ऑप्शन आते हैं 1 only, B 2 only, C 1 and 2, D 1, 2 and 3. और इसका करेक्ट आंसर है C. रजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स टैक्स एक्ट प्रॉपर्ली डिफाइन करता है। उसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 25 बताता है रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब सेल्स टैक्स। Which from the following activity is not considered as a taxable activity? A. An economic activity carried on for profit. An economic activity carried on not for profit. C. Rendering services. D. Employee work and services. और इसका करेक्ट आंसर है डी. एम्प्लॉय वर्क एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे सेल्स टैक्स एक्ट हमें टैक्सेबल एक्टिविटी के बारे में भी एक प्रॉपर डेफिनेशन देता है। अब हम उसको देखते हैं। सेक्शन
टू सबसेक्शन 35 हमें बताता है टैक्सेबल एक्टिविटी मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इंक्लूड्स, एक प्रॉपर इसके अंदर हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि वो कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि कैरी की जाएंगी तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी के एम्बिट के अंदर आ जाएंगी। देयरफॉर जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियसली डेफिनेशंस को रीड करके बताया, इसी तरीके से आप टैक्सेबल एक्टिविटी के डेफिनेशन को रीड करेंगे तो वो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Value of supply is equal to A. Taxable supply, B. Taxable supply plus all taxes, C. Taxable supply plus all taxes plus duty paid, या D. Taxable supply plus all taxes minus duty paid। और इसका करेक्ट आंसर है C. Taxable supply plus all taxes plus duty paid। According to Income Tax Ordinance 2001, the normal tax year is a period of 12 months from dash to dash: A. 1st January to 31st December, B. 1st April to 30th March, 1st July to 30th June, या D. 1st September to 31st August। और इसका करेक्ट आंसर है C. 1st जुलाई से 30th जून तक। 22. The income of a resident person is computed by taking into account amounts that are 1. Pakistan source income, B. Foreign source income। ऑप्शन ए कहता है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1+2, डी 1-2। और इसका करेक्ट आंसर है सी 1+2, मतलब रेजिडेंट पर्सन की जो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी और फॉरेन सोर्स इनकम होगी, उन दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट बनेगा उसके ऊपर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। The income of a non-resident person is computed by taking into account amounts that are Pakistan source income, 2. Foreign source income। Option A 1 only, option B 2 only, option C 1+2, option D 1-2। और इसका करेक्ट आंसर है सिर्फ फॉरेन सोर्स इनकम नहीं, पाकिस्तान सोर्स इनकम लेंगे, राइट? क्योंकि फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो उस कंट्री के अंदर टैक्स हो रही होगी नॉन रेजिडेंट की, जिस कंट्री के अंदर वो काम कर रहा होगा, और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम ही कैलकुलेट होगी और टैक्स होगी। अच्छा, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द हेड्स ऑफ टोटल इनकम। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें कुछ हेड बताता है, हेड्स ऑफ इनकम। तो विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दैट? ए सैलरी, बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और बिजनेस, सी इनकम फ्रॉम सेल्स, या डी कैपिटल गेन। इसका करेक्ट आंसर है सी इनकम फ्रॉम सेल्स। इनकम टैक्स इज लेवाइड जनरली ऑन द ए नेट इनकम, बी ग्रॉस इनकम, सी ग्रॉस इनकम लेस नेट इनकम, डी एनी ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट आंसर है नेट इनकम। 26. Customs duty is levied on goods imported into Pakistan. 2. Exported from Pakistan. 3. Transported through Pakistan. इसके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 2, डी 1 and 3। और इसका करेक्ट आंसर है 1 and 2। कस्टम ड्यूटी क्या होती है अभी हम ये देखते हैं। Customs duty refers to the tax imposed on goods when they are transported across international borders। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान से जब पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स से गुड्स बाहर जाएंगी तो उनके ऊपर जो टैक्स या ड्यूटी लगेगी उसको हम क्या कहते हैं? कस्टम्स ड्यूटी। इन सिंपल टर्म्स, इट इज़ द टैक्स दैट इज लेवाइड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। The government uses this duty to raise its revenue, safeguard domestic industries, and regulate movement of goods। 27. Excise duties are levied on a limited number of goods manufactured and services provided dash Pakistan. A in Pakistan, B outside Pakistan, both A and B, D none of these। और इसका करेक्ट आंसर है ए विद इन पाकिस्तान, क्योंकि प्रीवियसली हम
देख चुके हैं प्रीवियस एमसीक्यू के अंदर कि जो कस्टम ड्यूटी होती है वो आउटसाइड पाकिस्तान जो गुड्स जारी होती हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है, और एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो विद इन पाकिस्तान कैलकुलेट हो रही होती है और टैक्स हो रही होती है। जैसे हम प्रीवियस एमसीक्यू में देख चुके हैं कि कस्टम्स ड्यूटी उन गुड्स पे अप्लाई होती है जो कि वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर से बाहर जाते हैं, और एक्साइज ड्यूटी उन गुड्स के ऊपर अप्लाई होती है जो मैन्युफैक्चर हुए या वो सर्विसेज जो प्रोवाइड हुई हैं कहाँ, पाकिस्तान में। 28 ऑल एक्सपोर्ट्स आर लायबल टू डैश टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ए 0%, बी 5%, सी 10% या डी 17%। और इसका करेक्ट आंसर है ए 0%। 29 the sales tax on goods imported into Pakistan is paid by the A exporter, B importers, C both A and B, D none of these। और इसका करेक्ट आंसर है बी इम्पोर्टर। 30th all supplies made in Pakistan by a registered person in the course of any business carried on by him is liable to pay dash sales tax। A 0%, B 5%, C 10% या D 17%। और इसका करेक्ट आंसर है D 17%। सेक्शन 3 ऑफ सेल्स टैक्स हमें बताता है कि ऑल टैक्सेबल सप्लाईज पे 17% अप्लाई होगा सिर्फ उन गुड्स के ऊपर जो कि सेक्शन 4 में और 13 के अंदर स्पेसिफिकली बताई गई हैं। कुछ गुड्स एग्जाम्प्ट हैं और दूसरी जीरो रेट के ऊपर अप्लाई होती हैं। 31 विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज गुड्स। ए एक्शनेबल क्लेम्स, बी मनी, सी स्टॉक्स शेयर्स एंड सिक्योरिटीज या डी नन ऑफ दीज। और इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। सेल्स टैक्स एक्ट हमें डेफिनेशन सेक्शन के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 बताता है गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। लिहाजा वो तमाम ऐसी गुड्स जो कि मूवेबल हो, इन काइंड हो, और अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। 32 which section of the Sales Tax Act 1990 stipulates the goods that are exempt from levy of sales tax। यानी वो कौन से ऐसे गुड्स हैं जो कि सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं। हमने दो कैटेगरीज ऑलरेडी देख चुके हैं, एक 17% वाली, दूसरी 0% वाली। ये थर्ड कैटेगरी है जिसमें सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट है ऑन सर्टेन गुड्स। वो गुड्स किस सेक्शन में डिफाइंड है? ए सेक्शन 4, बी सेक्शन 10, सी सेक्शन 13 या डी सेक्शन 15। और इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 13। सेक्शन 4 के अंदर हमें जीरो रेटेड सप्लाईज के बारे में बताता है, सेक्शन 3 हमें 17% के बारे में बताता है, और सेक्शन 13 हमें एग्जेम्प्ट गुड के बारे में बताता है। 33 विच शेड्यूल ऑफ सेक्शन 13 यानी एग्जेम्प्ट गुड्स के बारे में which schedule of section 13 of sales tax act includes a list of items on which no sales tax is levied? A third schedule, B fourth schedule, C fifth schedule or D sixth schedule। और इसका करेक्ट आंसर है सिक्स्थ शेड्यूल। अब आपने करना यह है कि जिस तरीके से मैंने आपको फिफ्थ शेड्यूल का एक रेफरेंस दिया था, इसी तरीके से जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो बेयर एक्ट्स शेयर किए आप लोगों से, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज एक्ट के, उनमें जाके आपने देखना है कि सिक्स शेड्यूल के अंदर कौन कौन से आइटम्स गिवन हैं, उनको क्रॉस रेफर करना है सेक्शन 13 से, और उसमें ये देखना है कि वो आइटम्स जो कि जीरो रेटेड हैं वो सेक्शन 4 के अंदर डिफाइंड है। फिर सेक्शन 13 में जाके आपने देखना है सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जो कि एग्जाम्प्ट हैं, और उसके अलावा जो सेक्शन 3 के अंदर रेफरेंस दिया हुआ है वो वहाँ से देखना है। तो आई होप आप लोग एमसीक्यू से ये चीज़ सीख रहे होंगे कि किस तरीके से हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जब हम सेक्शन को रीड करते हैं तो हम सेक्शन को उसके क्रॉस मैच कर लेते हैं रेफरेंस से, एक्ट से। उसके बाद जो वो सेक्शन रेफर कर रहा होता है किसी शेड्यूल को, तो हम उस शेड्यूल में जाके उसकी जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है
गुड्स की या सर्विसेज की, उसको हम वहाँ से देख रहे होते हैं। तो सेम गोज़ फॉर इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर भी सेम जो है हमारा प्रोसेस अप्लाई हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम क्रॉस मैच या क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं। वो लोग जिनको बेरेक्ट पढ़ने में इशू आता है, तो वो सेक्शन रीड करने के बाद वो सेक्शन जिस शेड्यूल को रेफर कर रहा है उस पर आप जाके वहाँ से उसको क्रॉस मैच या क्रॉस रेफर कर सकते हैं। 34. Sales tax is levied at the rate of dash on all goods imported into Pakistan. A 0%, B 5%, C 10% या D 17%। और इसका करेक्ट आंसर है D 17%। जीरो रेट किन के ऊपर अप्लाइड है? जो कि 4th सेक्शन में गिवन है। एग्जाम्ड गुड कौन सी हैं? जो कि सेक्शन 13 में गिवन है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर जीरो रेट अप्लाई होता है, लेकिन इंपोर्ट्स के ऊपर 17% अप्लाई होता है। 35. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ए रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी, रिटेल प्राइस माइनस जीएसटी, सी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस जीएसटी और डी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस जीएसटी। और इसका करेक्ट आंसर है रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी। जिस तरीके से आप ख़वातीन नॉर्मली बुटीक्स पे जाके कोई ड्रेस परचेज करती हैं तो वहाँ पे सेल्स प्राइस में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। या इसी तरीके से हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे भी प्राइस प्लस जीएसटी या इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिखा होता है। तो देयरफॉर आपको उससे रिकॉल हो जाएगा कि जो सेलिंग प्राइस होती है जो कि हम पे कर रहे होते हैं एज अ कंज्यूमर पे कर रहे होते हैं, उसमें रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी होता है। 36. In general, according to Sales Tax Act 1990, tax period is a period of 1 month, 6 months, 9 months और 1 year। और इसका करेक्ट आंसर है ए 1 मंथ। टैक्स पीरियड को सेक्शन 2 सब क्लॉज 43 डिफाइन करता है। टैक्स पीरियड मीन्स अ पीरियड ऑफ 1 मंथ or such other period as the board with the approval of the federal minister in charge may by notification in the official gazette specify। दो ट्रीटमेंट दी है, या तो 1 मंथ होगा या फिर फेडरल मिनिस्टर से कंसल्ट करने के बाद बोर्ड कोई और भी पीरियड को डिफाइन कर सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए 1 मंथ ही डिफाइंड है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 43। 37. The due date to furnish a return at the end of the tax period is the dash day of the following month, 7th, 10th, 15th या 18th। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि टैक्स पीरियड हमारा 1 मंथ का होता है और उसका जो पेबल होता है वो द नेक्स्ट मंथ की डैश तारीख को होता है। तो उससे आप क्रॉस रेफर कर सकते हैं वो तारीख, और सेल्स टैक्स का रिटर्न जमा कराने की तारीख भी सेम है। तो देयरफॉर इसका आंसर है सी 15th। A computerized program for analyzing and cross-matching of sales tax return is called A. MATLAB, B. SPSS, C. SAS, D. CREST। This is one of the most easiest MCQ, तो इसका आंसर है D. CREST। 39. Cottage industry means a manufacturer whose annual turnover from taxable supplies made in any tax period during the last 12 months ending any tax period does not exceed A 1 million, B 5 million, C 10 million या D 100 million। कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स अ मैन्युफैक्चरर हुज एनुअल टर्नओवर, उसकी टर्नओवर कितने अमाउंट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए लास्ट 12 मंथ्स में? A 1 मिलियन, B 5 मिलियन, C 10 मिलियन या D 100 मिलियन। और इसका करेक्ट आंसर है C 10 मिलियन। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है और नॉर्मल इंडस्ट्री क्या होती है? कॉटेज इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 5AB के अंदर डिफाइन किया गया है। कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच फुलफिल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नेमली, मतलब कि जो नीचे दी गई हुई कंडीशंस हैं वो सब के सब फुलफिल होंगी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, तो वो तब ही कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल करेगा। A does not have an industrial gas or electricity connection, B is located in a residential area, C does not have a total labor force of more than 10 workers और D जो हमारा MCQ भी है, annual turnover from all supplies does not exceed 10 million rupees। Local supplies of goods made by a cottage industry are exempt from इसका ऑप्शन है
इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। द रीज़न मैंने इसका आंसर्स नहीं पढ़े कि सेल्स टैक्स के अंदर ये कॉटन इंडस्ट्री डिफाइंड है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि ये सेल्स टैक्स ने इसको एग्जाम किया होगा। 41 जनरल सेल्स टैक्स इज चार्ज्ड ऑन ए सेलिंग प्राइस, बी रिटेल प्राइस, सी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डी नन ऑफ दीज। और इसका करेक्ट आंसर है बी रिटेल प्राइस। प्रीवियस एमसीक्यू के अंदर हमने देखा था कि सेलिंग प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी, मतलब कि रिटेल प्राइस के बाद जीएसटी कैलकुलेट होता है तो सेलिंग प्राइस बनती है। सेलिंग प्राइस वो अमाउंट है जो हम एज अ कंज्यूमर या कस्टमर पे कर रहे होते हैं, देयरफॉर जीएसटी जो है वो रिटेल प्राइस के ऊपर चार्ज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमने एमसीक्यू की जो एक प्रॉपर डिटेल वर्जन था वो ख़त्म कर लिया है। इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी कि किस तरीके से हमें जो टर्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्रॉस मैच करना है एक्ट से, और एक्ट के अंदर किस तरीके से जो क्रॉस लिंकिंग हुई हुई है एक्ट हमें फॉर एग्जांपल सेक्शन हमें बताता है कि फना शेड्यूल के अंदर जाके लिस्ट ऑफ आइटम्स देखें, गुड्स देखें, तो उसको किस तरह देखना है। और उसी तरीके से कौन कौन से टैक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स का हमने कुछ एमसीक्यूज देखे जो बताते हैं कि सेल्स टैक्स 17% पे एप्लीकेबल है, कुछ गुड्स के ऊपर 0% से एप्लीकेबल है और कुछ गुड्स से एग्जाम्प्ट है। देयरफॉर इन एमसीक्यू का आई होप आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।